Hello everyone, this is Mohammad Saqib, your chemistry teacher. Welcome to our channel where you can get mastery of your concept and elevate your grade. So let's start. Well, in today's video, you will be learning about energy changes. So, before going to discuss energy changes, let's see which type of changes we have in our daily life. There are two types of changes. Number one, physical changes, and number two, chemical. What are physical changes? Physical changes are the changes in which nothing new is formed, only the shape changes, color changes, etc. Only the state of matter changes. Those are called physical changes like melting, freezing, condensation, evaporation. All these are physical changes in which a substance changes its form. Okay, nothing new is formed. In physical changes, uh, no bonds breaking and formation takes place. Okay, while in chemical changes are those in which a new substance is formed. Old bonds break and new bonds are formed. A new substance is formed, in other words. Like burning, आप burning देखें तो burning is a chemical reaction. Basically, it is a reaction with oxygen. And rusting is also a chemical reaction in which a new substance is formed. Likewise, decomposition, for example, calcium carbonate decomposes, it forms a new substance. So these things are chemical changes. As you might have observed from the examples which I have given to you, physical changes are easily reversed. For example, melting, freezing. आप पानी को मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्टिंग से भी पानी के मॉलिक्यूल्स तो वही हैं, जस्ट एनर्जी और गैप्स चेंज हुआ मॉलिक्यूल के दरमियान, उसी को आपने फ्रीज कर लिया है, ठीक है, कोई बॉन्ड्स नहीं बने नए. ओके, बट अगर आप रस्टिंग पे जाते हैं, रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग हो रही है, तो बेसिकली आयरन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, अ न्यू बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन. कुकिंग इज आल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है, in which you cannot reverse easily. So chemical changes are not easily reversed. There are so many examples of physical and chemical changes in our daily life. So these changes, either physical or chemical, whenever they take place, there is always change in energy. ठीक है, या तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी या एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी. देयर इज ऑलवेज चेंज इन एनर्जी. ओके, सो व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी चेंजेस, so we will be dealing with two things. Number one, our system and the surrounding. अब जरा इसको क्लियर कर लें, what is system? The thing which is under observation or the chemical reaction which you are studying is called the system. For example, in the test tube I am adding calcium oxide and water. ठीक है, so ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है ना, ये मेरा सिस्टम है. उसके अलावा एवरीथिंग सराउंडिंग दिस टेस्ट ट्यूब इंक्लूडिंग द टेस्ट ट्यूब भी सराउंडिंग में आएगी, और इसके बाहर जो कुछ भी है ये सब सराउंडिंग में आएगा. ठीक है, पूरी लैब हमारी जो है वो सराउंडिंग में आएगी. अच्छा, फॉर एग्जांपल आप देखिए मेरे पास इसमें पानी है, ठीक है, और उस पानी के अंदर मैं थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई ऐड सम HCl, तो एसिड और एल्किल का रिएक्शन होगा, तो ओनली HCl यानी एसिड जो मैंने डाला वो और एल्किल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सिस्टम है. इसके अंदर इवन जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, वो भी सराउंडिंग होगा, ये टेस्ट ट्यूब भी सराउंडिंग होगी, और एवरीथिंग सराउंडिंग दिस टेस्ट ट्यूब, पूरी लैब, पूरा स्कूल, पूरा घर, ये सराउंडिंग में आएगा. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी चेंजेस, सो वी विल बी dealing with the change in energy between system to surrounding or surrounding to system. Okay,
सो सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए. System is anything which is under observation. Only that thing is your system, or everything surrounding the system is called surrounding. Okay. Um, there are two types of changes. Whenever a change takes place, so according to energy change, there are two things: whether energy is absorbed or energy is released. यानी या तो सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही होगी या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही होगी. ठीक है. सो देयर आर टू चेंजेस टेकिंग प्लेस. सो अकॉर्डिंगली वी हैव गिवन द नेम लाइक एक चेंजेस वो होंगी जो एंडोथर्मिक होंगी. ठीक है. एंडो मीन इन, एंडोथर्मिक, एंडो मीन इन, थर्मिक मीन थर्म मीन हीट. दोज चेंजेस इन विच हीट इज टेकन इन, एनर्जी इज टेकन इन, मीन energy is absorbed from surrounding to system, that is called as endothermic change. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. मेल्टिंग. ठीक है. इस रूम के अंदर आप एक बड़ा सा क्यूब आप आइस का ला के रख दें तो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. ठीक है. बिकॉज आइस क्या कर रही होगी, आइस विल बी एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. बायस हीट एब्जॉर्ब करेगी और हीट एब्जॉर्ब करके तो क्या हो जाएगी, इट विल मेल्ट. और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, आवर प्रोडक्ट इज वाटर. ठीक है. पानी बन गया, मेल्ट हो गया ना. तो आप देखें, तो आप चेंज करें. व्हेन यू पुट अ ब्लॉक ऑफ आइस इन दिस रूम तो क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ रूम विल डिक्रीज. क्यों? बिकॉज आइस ने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है. एंडोथर्मिक चेंज है. ओके. सो दो चेंजेस आपको नजर आ रही है. नंबर वन, द टेम्परेचर और एनर्जी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज्ड, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है सराउंडिंग से. अब वो एनर्जी कहां चलेगी, वो एनर्जी चलेगी सिस्टम के अंदर. सो द प्रोडक्ट टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज्ड. ओके. ठीक है. सो एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, नंबर वन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, temperature of surrounding decreases, and energy of product increases. As you can see from this graph, that reactant is at lower energy level and product is at higher energy level because energy has been absorbed from the surrounding. Okay. ये एक फ्रीजिंग मेल्टिंग की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जिससे आप एंडोथर्मिक को आप याद रख सकते हैं. दूसरी चेंज जो है दैट इज एक्सोथर्मिक, एग्जिट, गिवन आउट. So those changes in which energy is given out from system to surrounding, those changes are called as exothermic changes. Okay. दोबारा ये सुने आप, changes in which, whether physical change or chemical change, कुछ भी हो सकता है, the changes in which energy is given out, energy is given out from system to surrounding, that change is called as exothermic change. अब देखिए आप क्या हो रहा है, एनर्जी इज गिविंग आउट, एनर्जी इज बीइंग सेंट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सो एनर्जी ऑफ सराउंडिंग विल इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल इंक्रीज, और सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से तो एनर्जी निकल गई है, सो आपके प्रोडक्ट का जो एनर्जी या टेम्परेचर होगा दैट विल गो डाउन. सो आप देखें व्हाट इज एक्सोथर्मिक. नंबर वन, exothermic change is change in which energy is given out. Number one. Number two, the temperature of surrounding will increase. Number three, the energy of your product will decrease. For example, burning हो रही है कहीं पे, कुछ चीज जल रही है. Burning is an exothermic chemical change. ठीक है. In which energy is given out. So आप देखें, you can see from this graph कि आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज एट हायर एनर्जी लेवल, फिर रिएक्टेंट से एनर्जी इज गिवन आउट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है दैट इज डिक्रीज्ड. ओके. सो दीस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक चेंजेस. ओके. इन अ केमिकल रिएक्शन देयर आर टू फेजेस. जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, लाइक आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है आपस में, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक करना होंगे, हाइड्रोजन को एटम्स को अलग अलग करना होगा. ऑक्सीजन एटम्स विल आल्सो बी सेपरेटेड
and then oxygen or hydrogen will join and they will make a new bond. Okay, so दो तरह की चेंजेस किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जरूर होंगी, तब वो रिएक्शन होगा. नंबर 1 बॉन्ड ब्रेकिंग एंड नंबर 2 बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है. मीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या होगा, आप गर्म करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एंड देयर मॉलिक्यूल विल strike with collide with each other with more and more kinetic energy and ultimately their bonds will break. So bond break करने के लिए you have to give energy. So bond breaking is an endothermic change. और उसके अगेंस्ट जब नए बॉन्ड्स बनेंगे तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक चेंज. ठीक है, ये आपने याद रखना है. जस्ट 2 लाइन. नंबर 1 बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक चेन. ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के ये 2 लाइंस आपके सॉल्व कर देंगे. बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक चेन. ओके, नाउ हाउ यू कैन डिफाइन वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. कोई भी रिएक्शन जब होगा तो पहले एनर्जी अब्सॉर्ब होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, फिर एनर्जी रिलीज होगी जब नए बॉन्ड्स बनेंगे. तो मीन वी हैव टू कैलकुलेट कि एनर्जी अब्सॉर्ब कितनी हुई और एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, फिर हम बता सकेंगे कि ओवरऑल इसकी एनर्जी क्या रही. फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ हीट एनर्जी वॉच दिस वीडियो.